Good morning everyone. 11th Commerce English Medium Economic chapter number 8. Now the concept is evolutions of economic reforms. From 1951, India adopted socialist pattern of planning and in order to set up a society with quality. It adopted narrow regulated and inward looking economic policies, and after 1991 India made these policies liberal, market oriented, outward looking for promoting trade and development. 1951 से लेकर के 1991 तक जो हमारी पॉलिसी थी काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड थी, रूल्स रेगुलेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस और काफ़ी ज़्यादा नैरो थे. बट आफ्टर 1991 वो लिबरल हो गए, मार्केट ओरिएंटेड हो गए और आउटवर्ड लुकिंग हो गए, ताकि ट्रेडिंग को क्या मिले, प्रमोशंस एंड development. Let's see these types of policies. Now, this transformations was called the process of economic reforms. Evolutions of these reforms after almost 25 years can be done as under. First is favorable effects of economic reforms. Economic policies reforms in the forms of liberalization, privatization and globalization, in short LPG, increased and the significance of the market forces of demand and supply, owing to which determinations of price, wages, interest become market oriented and more realistic and less regulated. गवर्नमेंट के काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस कम हो गए, प्लस साथ ही साथ जो भी हमारी सारी चीज़ें थी सब मार्केट ओरिएंटेड हो गए. मार्केट ओरिएंटेड होते हैं तो मार्केट फ्लक्चुएट होता है, फ्लक्चुएट होने के कारण ये रेट भी फ्लक्चुएट होता है, जिसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स गवर्नमेंट और ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स को जाता है. बिसाइड्स ओनिंग टू reduce regulation, the decision regarding productions, investment and distributions also becomes market oriented. So, the stern difference between the domestic and foreign investments and narrowed down and certain effects favorable to India can be observed. इन दोनों के बीच में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है. अब चलिए देखते हैं कि वे फॉरेन ट्रेड का इंडिया को क्या बेनिफिट मिला है. सो बेनिफिट्स आर हियर. फर्स्ट आता है कंज्यूमर started getting varieties of goods of international quality easily and a reasonable price. कंज्यूमर को आसानी से एक तरीके का गुड जो यूज़ करते थे उसकी वैरायटी मिलना शुरू होगी, वो भी इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे. सेकेंड आता है इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज. कल तक हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हमारा सेल्स प्रमोट हुआ इंटरनेशनल लेवल पे वैसे वैसे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी रिजर्व हो गया. इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स इंक्रीज्ड. इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, ना ही सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर्स का, जबकि साथ ही साथ इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स का भी एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है. फोर्थ, along with the increase in FDI, foreign direct investment, the risk of certain investment debt burden of the state for the importing costly technology, it is reduced because the foreigner companies can directly set up their plantations, machineries and technology in India. That's why the purchasing power of technology is to also reduce with the help of foreign direct investment. Next आता है large scale investment increased in the private sector, which is in turn increased production and employment. फॉरेन जो कंट्रीज़ के पीपल्स हैं उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण हमारा जो प्रोडक्शन का रेशियो वो और प्लस लोगों को एम्प्लॉयमेंट के रेशियो में भी इंक्रीमेंट हुआ है. नेक्स्ट आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस become more mobile within the nation and between the nation. Factors of production like a land, labor, capital and entrepreneur. हम कैपिटल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते हैं, एंटरप्रीनियर को ले जा सकते हैं और प्लस साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ को भी ले जा सकते हैं. कल तक इंडिया के एम्प्लॉय इंडिया में ही काम करते थे, आज इंडिया के एम्प्लॉयज़ वर्ल्ड लेवल पर और अलग अलग नेशन में काम करते हैं, तो उनकी जो एक्यूरेसी है, नॉलेज है, एफिशिएंसी है, उसका बेनिफिट्स बहुत सारे नेशंस को मिलता है.
Next is under an era of too many regulations, corruptions, bureaucratics, hurdles, delays in decisions makings and inflexibility in administrations had become a common features in the policy implementations. गवर्नमेंट के अंडर में जो भी चीज़ें होती है, करप्शंस है, रेगुलेशंस है, ये सारे के सारे नेगेटिविटी हमें देखने को मिलता है. बट all these are found have gradually reduced after the reforms. Whenever reforms comes in our India, ये धीरे धीरे कम होते गए, जिसका बेनिफिट मार्केट को और पीपल्स को मिला है. नेक्स्ट, certain sectors which are significant in the growth but neglected owing to scarcity of capital and government regulations gotten imports with private sectors investment initiatives, for example natural gas pipelines, मॉडर्नाइजेशंस ऑफ रेलवेज एंड सो और. कल तक गवर्नमेंट कुछ फील्ड्स के अंदर अकेले काम करती थी, लेकिन आज गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलके काम कर रही, तो बहुत सारे फील्ड्स में, बहुत सारे कामकाज में मॉडर्नाइजेशन देखने को मिल रहा है ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स. नेक्स्ट आता है शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट, rather variety increases. पहले गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट में शॉर्टेज हो जाती थी, बट आज इतना एबिडेंट रेशियो अवेलेबल है, इतनी सारी कंपनियां अवेलेबल है कि उसकी वैरायटी इंक्रीज हुई, उसकी शॉर्टेज होती नहीं है. लास्ट पॉइंट आता है सोशल एंड कल्चरल टाई विद द अदर नेशन इम्प्रूव्ड. कल तक हमारा कल्चर हमारी कंट्री में ही देखने को मिलता था, बट आज हमारा कल्चर, सोशल एक्टिविटी दूसरी कंट्री में भी देखने को मिलती है. सो हियर इज द सोशल एंड कल्चरल टाइज विद द अदर नेशंस इम्प्रूव आवर नेशंस कल्चरल प्रोडक्ट demanded by other nations and other nations goods demanded in our countries. So these are the favorable effect. Do it. Thank you so much.